Hello students, today our topic is computer system and in this lecture we are going to discuss the block diagram of CPU. Okay, in our last lecture we already discussed the block diagram of a computer system. So let us start. With the definition of the computer system first. So what is a computer system? A computer is an electronic device that can perform mathematical operation, logical operation and graphical operation. So three are the major operations that a computer can perform. And the most important thing about this definition is that computer is an electronic device. So it is an electronic device and it can perform three types of operations: mathematical, logical and graphical operation. As the main part of the computer system is concerned, there are basically four main parts, or we can say that unit. These are input unit, output unit, storage unit and central processing unit. So these are the four main units or parts of a computer system. And when we talk about the block diagram of a computer system, it simply means that we write all these main parts of the computer system into different blocks and interconnect these blocks to each other. And whatever we get is basically the block diagram of a computer system. So when we talk about the block diagram of a computer system, it simply means that different parts of a computer system are we just write them in a block, or we can say that in a box. And if there are again part or that block, can then the block can be divided again into further blocks, like the storage unit. So storage unit, we can say that there are two types of storage: primary storage and secondary storage. So we basically write two different boxes inside the storage unit. These are secondary storage and primary storage. Okay, so this is the block diagram of a computer system. And in our previous lecture we already discussed this block diagram of a computer system. So now in this lecture our main focus is to understand the concept of CPU. ओके, तो सबसे पहले हमको समझना क्या है? हमको समझना है ब्लॉक डायग्राम को, और ब्लॉक डायग्राम के बाद फिर हम और इंटरनल डिटेलिंग में जाएंगे, तो फिर हमको सीपीयू के बारे में समझना होगा. देखिए, जब हम ब्लॉक डायग्राम कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ हम सीपीयू को मेंशन तो करते हैं, लेकिन सीपीयू को एज ए पार्ट मेंशन करते हैं. लेकिन सीपीयू अपने आप में इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि उसकी फंक्शनैलिटी को समझने के लिए हमें उसका भी अलग से ब्लॉक डायग्राम हम बना सकते हैं, उसके भी पार्ट्स को बना सकते हैं, उसकी फंक्शनैलिटी को समझा सकते हैं. तो अभी जहाँ तक इस ब्लॉक डायग्राम की बात है, तो इस ब्लॉक डायग्राम में तो कंप्यूटर सिस्टम के में तो ओनली द फोर पार्ट्स आर देयर: इनपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट, आउटपुट यूनिट एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. पर अगर आपको सीपीयू के बारे में पूछा जाता है तो फिर आप उसका भी ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं. क्लियर? सो हम सीपीयू के बारे में एक बात जानते हैं. वी ऑल नो वेरी वेल दैट सीपीयू इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. ओके, अभी प्रोसेसिंग कैसे करता है ये हमको समझना है. तो अभी हम ब्लॉक डायग्राम पर फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि लास्ट 2 वीडियोज़ में हम ऑलरेडी इसको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपको ब्लॉक डायग्राम कंप्यूटर के सिस्टम के बारे में नहीं मालूम है, आप वो जाके वीडियो देखिए, तो वहाँ आपको समझ में आएगा कि कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम क्या है. देखिए, एग्ज़ाम में मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट क्या करते हैं कि जैसे ही देखा जाता है ब्लॉक डायग्राम, तो वट एवर जो भी उनको याद है, वट एवर दे लर्न, दे जस्ट राइट. वो देखते ही नहीं है कि वो किसका ब्लॉक डायग्राम पूछा गया है. कंप्यूटर का पूछा गया है, सीपीयू का पूछा गया है, मेमोरी का पूछा गया है, स्टोरेज का, तो वो कुछ सोचते नहीं, बस ड्रॉ कर देते हैं. तो ऐसा नहीं होता है. जिस कंप्यूटर सिस्टम का अगर ब्लॉक डायग्राम पूछा जाएगा तो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को ब्लॉक की फॉर्म्स में दिखाना, उनका इंटरकनेक्शन दिखाना एक दूसरे के साथ, किस तरीके से वो इंटरकनेक्टेड हैं. ठीक है? और अगर कंप्यूटर सिस्टम की जगह अगर सिर्फ सीपीयू को पूछा जाता है, दैट मीन्स आपको अब सीपीयू पर फोकस करना है. तो सीपीयू की फंक्शनैलिटी को समझाना है, सीपीयू के पार्ट्स को समझाना है. सीपीयू अगेन कैन बी डिवाइडेड इनटू सब पार्ट्स. तो उसके सब पार्ट्स आपस में किस तरीके से इंटरकनेक्ट होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, वो हमको समझाना होता है. तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था. आगे बढ़ने से पहले कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम को पढ़ लेते हैं. आई थिंक ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑल दिस कैरेक्टरिस्टिक्स, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं. फर्स्ट वन इज स्पीड.
First one is speed. So the speed of a computer is incredibly faster than what man can possibly record or calculate normally. तो जहाँ तक कंप्यूटर की स्पीड की बात है तो नॉर्मल कंप्यूटर में हम किसी सुपर कंप्यूटर की बात नहीं कर रहे हम, हालांकि कंप्यूटर कैन बी अगेन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स, कंप्यूटर की भी पार्ट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स, सॉरी कंप्यूटर के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, एनालॉग होता है, डिजिटल होता है, डिजिटल में भी अगेन फर्दर अगेन टाइप्स होते हैं आपके मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे अभी, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक वही है। लेकिन हम बात करें कि एक नॉर्मल कंप्यूटर की भी अगर बात करें तो एक ह्यूमन बीइंग से अगर कंपैरिजन किया जाए तो जो एक ह्यूमन बीइंग जो कैलकुलेशन करता है उससे कहीं ज़्यादा कैलकुलेशन एक कंप्यूटर विद इन अ सेकेंड कर सकता है। हम किसी नॉर्मल कैलकुलेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जब कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी, तो उस केस में आप देखेंगे कि कंप्यूटर नॉर्मल कैलकुलेशन में था, अगर हम आपसे 5+6 को ऐड करने के लिए बोलें तो मे बी पॉसिबल कि कंप्यूटर की स्पीड आपकी स्पीड मैच कर जाए। लेकिन अगर हम कॉम्प्लिकेटेड किसी कैलकुलेशन की बात करेंगे, जैसे मैंने कहा √23 की वैल्यू निकाली, अगर आपको याद है तो अलग बात है, लेकिन आप कैलकुलेट करेंगे तो इट मे टेक वेरी लॉन्ग टाइम, ओके, या उसके अंदर भी कुछ इस तरीके की कैलकुलेशन है, दैट इज़ एन अनदर थिंग। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक इज दैट द स्पीड। तो स्पीड क्या है आपकी, स्पीड इज़ ग्रेटर दैन एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग के ब्रेन से कहीं ज़्यादा स्पीड होती है कंप्यूटर सिस्टम की। और चलिए सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट था स्टोरेज। अ कंप्यूटर सिस्टम कैन स्टोर ए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन अ सिस्टमैटिक मैनर। अब ये इंपॉर्टेंट है, स्टोरेज कंप्यूटर सिस्टम की अगर हम स्टोरेज कैपेबिलिटी की बात करें, वी टॉक अबाउट द कैपेबिलिटी ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, देन नो डाउट अबाउट दिस फैक्ट दैट कंप्यूटर कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा in a very systematic approach, in a very systematic manner. It take a very systematic approach. So अभी आप सिस्टम में देखिए कुछ भी सर्च करने जाएंगे ना तो आपको आसानी से मिल जाएगा। सर्च का भी ऑप्शन होता है कंप्यूटर में, आपको पता ही होगा, और उसमें ड्राइव्स होती हैं, फोल्डर्स होते हैं, फोल्डर्स के अंदर भी आप सब फोल्डर्स बना सकते हैं, फाइल्स होती हैं, ठीक है, तो आप उन फाइल्स को ईजिली मेंटेन कर सकते हैं। और फिर भी अगर कुछ मिसप्लेस हो जाता है, आपको लगता है कि फ़ाइल नहीं मिल रही, तो आप सर्च कर सकते हैं उसको आसानी से, तो वो भी आपको एक ऑप्शन रहता है आपका। तो जहाँ तक स्टोरेज की बात थी तो स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है इसकी। थर्ड पॉइंट इज़ एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। इन स्पाइट ऑफ द हाई स्पीड द कंप्यूटर्स आर क्वाइट एक्यूरेट एंड रिलायबल इन देयर कैलकुलेशन। द एक्यूरेसी ऑफ ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर इज ऑलवेज 100%। जहाँ तक एक्यूरेसी की बात है तो एक्यूरेसी इसकी 100% होगी। एक ह्यूमन बीइंग से कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, ठीक है, एक जीनियस पर्सन भी होगा तो वो भी 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता कैलकुलेशन में हमेशा। लेकिन जहाँ तक कंप्यूटर की बात है, अगर इनपुट ठीक दिया गया है तो आंसर हमेशा करेक्ट मिलेगा आपको। तो 100% एक्यूरेट होता है और रिलायबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑटोमेटिक। वंस द प्रोसेस हैज़ बीन इनिशिएटेड कंप्यूटर इज क्वाइट कैपेबल ऑफ फंक्शनिंग ऑटोमेटिकली। इट डज नॉट रिक्वायर ए प्रॉम्प्ट फ्रॉम एन ऑपरेटर एट ईच स्टेज ऑफ द प्रोसेस। देखिए एक बार प्रोसेस इनिशिएट कर दिया तो ऐसा नहीं है कि आपको हर बार बताना पड़ेगा कंप्यूटर को कि नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा। आपने प्रोसेस को इनिशिएट कर दिया, देन कंप्यूटर जो भी इससे रिलेटेड कैलकुलेशंस होंगी उसको वो परफॉर्म करके आपको फाइनल आउटपुट प्रोवाइड करा देगा। तो ये ऑटोमेटिक भी है, क्लियर। और फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो वहाँ तो कंप्यूटर सिस्टम में हम बात करते हैं रोबोटिक्स की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो वहाँ तो ह्यूमन इंटरेक्शन, हम ये कहें कि सही वर्ड होगा कि उसमें हमें मिनिमम इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती हैं, क्लियर है। और वहाँ मिनिमम इंस्ट्रक्शन के साथ ही कंप्यूटर के पास ये नॉलेज भी होती है, कैपेबिलिटी भी होती है कि वो राइट और रॉन्ग को जज कर सके इनपुट को और उसके अकॉर्डिंग बिहेव कर सके। क्योंकि अभी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की बात करें तो उसमें एक पॉसिबिलिटी बनी रहती है रॉन्ग आउटपुट की, कि अगर आपने गलती से रॉन्ग इनपुट दिया है तो आउटपुट भी रॉन्ग ही होगा, ठीक है। लेकिन फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर सिस्टम के पास अपना एक IQ होता है। रोबोटिक्स की अगर हम बात करें, रोबोट्स की बात करें, और उसके अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं आपके। लेकिन आज ये हमारा टॉपिक नहीं है, आज का हमारा टॉपिक है CPU। सो CPU के पार्ट्स की बात करें तो CPU कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 बेसिक पार्ट्स, ALU, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर। अब आप कहेंगे सर आपने बताया था ब्लॉक डायग्राम के टाइम पर कि CPU के 2 पार्ट्स होते हैं, ALU, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर तो आपने बताया नहीं। देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको
कि जब हम ब्लॉक डायग्राम की बात कर रहे थे तो हम सिर्फ मेन कंपोनेंट्स की बात कर रहे थे हम वहाँ पर सीपीयू को बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे थे, ना ही हमको रिप्रेजेंट करना था। हमको कंप्यूटर सिस्टम को रिप्रेजेंट करना था। हमारी बात थी वहाँ पर कि हम कंप्यूटर सिस्टम के पार्ट्स को आपस में किस तरीके से इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा फोकस सीपीयू पर है, तो हमें सीपीयू के सभी पार्ट्स को बताना होगा। तो रजिस्टर भी एक पार्ट है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि द सीपीयू कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक सेक्शंस, द एएलयू दैट इज कॉल्ड द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, सेकंड इज कंट्रोल यूनिट एंड थर्ड इज रजिस्टर्स। अब इन दोनों के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर से यहाँ रिपीट करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा और आपको थोड़ा सा याद भी आ जाएगा कि हमने ब्लॉक डायग्राम के टाइम पर क्या डिस्कस किया था। और रजिस्टर न्यू कॉन्सेप्ट है तो इसको पढ़ेंगे और समझेंगे कि रजिस्टर का क्या काम है। ओके, अब एक इम्पॉर्टेंट बात है, वैसे आपको पता होना चाहिए, लेकिन चलिए फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। बुक का ही पॉइंट है ये, देखिए आप इमेज की फॉर्म में है यहाँ पर। अभी आप अगर सुमिता अरोड़ा धनपटाया एंड सन्स की बुक्स को स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ ये दे रखा है पॉइंट, ये सभी कुछ पॉइंट्स उससे ही लिए गए बुक से इस स्लाइड में। तो पॉइंट ये है कि द सीपी इज़ ऑल्सो कॉल्ड द माइक्रो प्रोसेसर और सिंपली द प्रोसेसर। तो सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं और प्रोसेसर भी बोलते हैं। तो कभी इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा, मैंने कुछ स्टूडेंट्स को इसमें भी कंफ्यूज होते देखा है, हालांकि कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। सीपीयू और प्रोसेसर या फिर माइक्रो प्रोसेसर बोथ आर द सेम थिंग्स, तो दोनों का एक ही मतलब है, दोनों एक ही बात है, अलग अलग नहीं होते हैं, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द माइक्रो प्रोसेसर और द प्रोसेसर। नेक्स्ट पॉइंट है नाउ इट्स टाइम टू शो द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। अब यहाँ पर हम बात करते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम की, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अगर हम सीपीयू की बात करें तो इनसाइड द सीपीयू यू कैन सी दैट देयर आर 3 बेसिक पार्ट्स, कंट्रोल यूनिट, सेकंड इज अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट एंड थर्ड वन इज रजिस्टर। ये 3 मेन पार्ट्स हैं, क्लियर है। और इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट और सेकंड इज स्टोरेज एंड मेमोरी का मतलब यहाँ पर मेन मेमोरी से है। ऑल दीज आर ऑल्सो कनेक्टेड टू द कंप्यूटर सिस्टम, ऑल्सो कनेक्टेड टू द सीपीयू। तो ये सीपीयू के थ्रू कनेक्टेड हैं, तो वो भी हमें दिखाना पड़ेगा। जब हमने ब्लॉक डायग्राम पढ़ा था तो हमने देखा था कि जो कंट्रोल यूनिट है इसका क्या काम बताया था। इसका हमने ये बार बताया था कि कंट्रोल यूनिट कंट्रोल द एंटायर ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम और इट जस्ट मॉनिटर्ड द फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम वेदर ऑल पार्ट्स आर प्रॉपरली कनेक्टेड टू ईच अदर और प्रॉपर फंक्शनिंग इज देयर और नॉट। तो ये काम था कंप्यूटर सिस्टम का, कंट्रोल यूनिट का कंप्यूटर सिस्टम में। ओके, तो हमने वहाँ देखा था, चलिए पहले मैं आपको ब्लॉक डायग्राम दिखा देता हूँ तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ये देखिए, सो दिस इज़ आवर कंट्रोल यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट इज़ कनेक्टेड टू इनपुट यूनिट, इट इज़ ऑल्सो कनेक्टेड टू आउटपुट यूनिट एंड इट इज़ ऑल्सो कनेक्टेड टू मेमोरी। Okay, it is also connected to arithmetical and logical unit. So all the parts of a computer system are connected to कंट्रोल यूनिट। ओके, अभी हम बात करते हैं यहाँ देखिए, तो यहाँ भी हमने सभी पार्ट्स को कनेक्ट कर दिए कंट्रोल यूनिट से, क्योंकि कंट्रोल यूनिट का क्या काम था अभी बताया था मैंने आपको। जैसा इसका नेम है, कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करती है किसको, कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को मैनेज करती है, मॉनिटर करती है उनकी फंक्शनिंग को कि प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं नहीं कर रहे। और ऐसे मैनेज करने के लिए क्या मेथड ऑप्ट किया जाता है, कंट्रोल सिग्नल सेंड किए जाते हैं। ये कंट्रोल सिग्नल 0-1 की फॉर्म में होते हैं। ये कंट्रोल सिग्नल सेंड किए जाते हैं और इस कंट्रोल सिग्नल के थ्रू पता चलता है कि सभी पार्ट प्रॉपरली कनेक्टेड है नहीं, प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो कंट्रोल यूनिट है ये सीपीयू का पार्ट है, लेकिन इससे सभी पार्ट्स आपस में इंटरकनेक्टेड है। देखिए, इनपुट यूनिट भी इंटरकनेक्टेड है, आउटपुट यूनिट भी इंटरकनेक्टेड है, ठीक है, और सेकंड स्टोरेज भी इंटरकनेक्टेड है और मेमोरी भी इंटरकनेक्टेड है। सो ऑल पार्ट्स आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। अभी ये जो एरो है बाई डायरेक्शनल, इसका अपना एक सेंस है और इसका यहाँ पर सेंस ये निकल के आता है कि डेटा की डायरेक्शन, डेटा कैन मूव इन बोथ डायरेक्शन। तो डेटा दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द बाई डायरेक्शनल। तो ये बाई डायरेक्शनल है, क्लियर है। यहाँ मेमोरी से मतलब प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी से है। तो एक तो बात ये थी, और हम यहाँ भी देखेंगे अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट से भी कनेक्टेड है। तो कंट्रोल यूनिट तो सभी पार्ट से कनेक्ट होगा, अगर किसी पार्ट से कनेक्ट नहीं है तो इट मीन्स वो उसको
कंट्रोल या मॉनिटर कर नहीं रहा, जबकि ऐसा होगा नहीं। कंट्रोल यूनिट का काम ही है कि एंटायर ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम आर मॉनिटर बाय कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट के थ्रू मॉनिटर किए जाते हैं सभी सिस्टम, सभी पार्ट्स। क्लियर है? तो यहाँ पर अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट जो कि एक सीपीयू का पार्ट है, उसको भी कंट्रोल यूनिट के थ्रू कनेक्ट किया गया है। ना बात करते हैं, अब जो बात निकल के आई है वो आई है, अच्छा ये देखिए, इसमें उसको रजिस्टर को डिस्कस करने से पहले एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं। कंट्रोल यूनिट से प्राइमरी मेमोरी को कनेक्ट किया गया है और अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट को भी कनेक्ट किया गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, क्योंकि हमने जब मेमोरी को डिस्कस किया था, प्राइमरी मेमोरी को, तो हमने ये बात बताई थी कि मेमोरी का काम डेटा सप्लाई करने का होता है सीपीयू को, ठीक है। और जिस डेटा पे भी प्रोसेसिंग होनी होती है वो डेटा आपका प्राइमरी मेमोरी से कहाँ मूव करता है, आपका सीपीयू को तरफ। सो कंट्रोल यूनिट, यहाँ पर कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट दोनों किससे कनेक्टेड हैं? दोनों कनेक्टेड हैं आपके मेमोरी से। अब बात करते हैं रजिस्टर की। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द रजिस्टर? व्हाट इज़ रजिस्टर? रजिस्टर क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, रजिस्टर इज द स्मॉलेस्ट मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी रजिस्टर है। इस बात को लिख लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इट इज़ आस्क्ड सो मैनी नंबर ऑफ टाइम्स इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कई बार पूछा जा चुका है इसका क्वेश्चन। मेमोरी दे रखी होंगी आपके 3 to 4 मेमोरी, और पूछा जाएगा इसमें सबसे फास्टेस्ट या सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी कौन सी है कंप्यूटर की। तो याद रखिएगा कि कंप्यूटर की सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी आपकी रजिस्टर होती है। अब आप कहेंगे ठीक है सर, रजिस्टर मेमोरी होती है। मेमोरी तो एक आपने बताया था रैम होती है, रोम होती है, जिसको हम कंबाइंडली मेन मेमोरी बोलते हैं या प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, और एक सेकेंडरी मेमोरी बताया था आपने, हार्ड डिस्क। अगर आपने वीडियो देखा होगा लास्ट, तो रजिस्टर भी मेमोरी होती है, ठीक है। लेकिन इसमें जो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये है, दिस मेमोरी लाइज इनसाइड द सीपीयू। ये मेन पॉइंट है। अभी देखिए, ये जो येलो एरिया है ये सीपीयू है, और बाकी तो पार्ट्स से इंटरकनेक्ट करके दिखाए हमने, ठीक है, चाहे वो मेमोरी हो, सेकंड स्टोरेज हो, इनपुट हो या आउटपुट हो। लेकिन रजिस्टर आपका इनसाइड द सीपीयू हमने लिखा है। और रजिस्टर को भी किस तरीके से, रजिस्टर नहीं लिखा, रजिस्टर्स लिखा है, ठीक है। इट इज़, इसका मतलब ये है कि ये मेमोरी मोर देन वन है, तो एक रजिस्टर नहीं होता है, या सो मेनी नंबर ऑफ रजिस्टर्स, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स आर देयर इन कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर के अंदर जो रजिस्टर्स होते हैं वो मोर देन वन होते हैं, फर्स्ट थिंग। और उनका टाइप भी अलग अलग होता है, स्टोरेज कैपेबिलिटी भी अलग अलग होती है, उनकी फंक्शनिंग भी अलग अलग होती है, सबका एक डेफिनेट टास्क होता है। 9th क्लास में आपको रजिस्टर्स को उतना डिटेल में तो पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। जब आप कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ेंगे और कभी आपने आगे कंप्यूटर साइंस पढ़ा, तो वहाँ पर आप समझेंगे, और या फिर आपने असेंबली लैंग्वेज को स्टडी किया तो आप समझेंगे कि रजिस्टर्स का कितना इम्पोर्टेंट रोल है। लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं सिर्फ अभी सिलेबस के बारे में आपके। तो आपको रजिस्टर के बारे में सिर्फ इतना समझना है कि रजिस्टर इज़ अ पार्ट ऑफ द सीपीयू, फर्स्ट थिंग। रजिस्टर इज़ द स्मॉलेस्ट मेमोरी। रजिस्टर इज़ द फास्टेस्ट मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। रजिस्टर सबसे स्मॉल मेमोरी होती है, रजिस्टर सबसे फास्ट मेमोरी होती है, और रजिस्टर सीपीयू का पार्ट होते हैं। क्लियर? सो रजिस्टर्स लाइज इनसाइड द सीपीयू। सीपीयू के अंदर रजिस्टर्स आपके स्टैंड करते हैं। और रजिस्टर्स आर मोर देन वन। तो एक से ज़्यादा रजिस्टर्स होते हैं कंप्यूटर सिस्टम में। दे कैन वेरी, वो वेरी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कंप्यूटर का टाइप क्या है। और जो टाइप्स, और रजिस्टर्स के भी अपने टाइप्स होते हैं जिनका अपना एक प्रॉपर फंक्शन होता है। ये तो बात थी रजिस्टर की, लेकिन बात फिर वही कि रजिस्टर क्या काम करता है, इसकी रिक्वायरमेंट ही क्या है, इसको सीपीयू के अंदर रखा ही क्यों गया है। देखिए, इसको मैं आपको, चलिए मैं इसको ओवर सिंप्लीफाइड कर देता हूँ आपके लिए। ऐसे समझिए कि हम ये जानते हैं कि कंप्यूटर में आपका सीपीयू इज़ कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू इसका ब्रेन है। अब ब्रेन है तो ब्रेन को कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। अभी चलिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज ALU को 5 और 6 को ऐड करना है, ठीक, 5 और 6 को ऐड करना है ALU को, एक 5 को ऐड करना है और 6 को ऐड करना है। जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो है अर्थमेटिक ऑपरेशन। तो वो तो पता है ALU को अर्थमेटिक ऑपरेशन है। लेकिन ये जो वैल्यू 5 है,
और ये जो वैल्यू 6 है ये इनसाइड द सीपीयू भी तो कहीं किसी मेमोरी लोकेशन पर स्टोर होनी चाहिए। क्लियर? तो इंटरनल कैलकुलेशन के लिए भी मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये कहाँ स्टोर होते हैं? ये रजिस्टर के अंदर स्टोर होती है वैल्यू। ये डिफरेंट रजिस्टर्स हैं जो बॉक्सेस बने हुए हैं रेक्टेंगुलर, ये डिफरेंट रजिस्टर्स हैं। तो एक सपोज एक ब्लॉक में आपका 5 स्टोर हो गया, सेकंड ब्लॉक में 6 स्टोर हो गया। अब इसका आंसर भी स्टोर होगा। 5 और 6 कितना होता है? 11। तो 11 भी स्टोर होगा। 11 यहाँ स्टोर हो गया आपका। तो 5 और 6 11 यहाँ स्टोर हो गया। तो डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस पर जो भी इंटरनल कैलकुलेशन थी या इंटरमीडिएट कैलकुलेशन थी या इंटरमीडिएट रिजल्ट था या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो फाइनल रिजल्ट था दैट ऑल वैल्यूज़ आर स्टोर्ड इनसाइड द रजिस्टर्स। तो वो सभी वैल्यूज़ रजिस्टर्स के अंदर स्टोर्ड होती हैं। क्लियर? तो ये इसको इनपुट प्रोवाइड कराने का काम करता है रजिस्टर्स, एएलयू को और सीयू को। साथ ही साथ इसमें आप इंटरमीडिएट कैलकुलेशन को स्टोर कर सकते हैं, की जाती हैं सीपीयू के थ्रू, और फाइनल रिजल्ट भी इसी के थ्रू स्टोर किया जाता है। ठीक है? और इसकी जो कैपेसिटी होती है, जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है, वो काफ़ी कम होती है। जैसे 32 बिट रजिस्टर। ठीक है? 32 बिट रजिस्टर का मतलब ये है कि उसकी जो बिट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट, स्टोरेज यूनिट हम जानते हैं, बिट सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। एक बिट का मतलब होता है ईदर 0 और 1, या तो 0 है या 1 है। तो 0 1 की फॉर्म में 32 बिट डेटा ही आ सकता है। 32 बिट रजिस्टर का ये मतलब होता है। 64 बिट का मतलब होता है ज़्यादा डेटा आ सकते हैं। ठीक है? तो ये मीनिंग होता है इसमें रजिस्टर्स का। तो रजिस्टर्स का जितना साइज़ ज़्यादा होगा, हायर द साइज ऑफ द रजिस्टर ग्रेटर द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर ऑल्सो। तो आपने देखा होगा कंप्यूटर के बारे में कहा जाता है 32 बिट और 64 बिट, उसका मतलब यही होता है। उसका मतलब रजिस्टर से होता है वहाँ पर। तो 64 बिट रजिस्टर्स में आपकी कुछ एप्लीकेशंस रन की करती हैं, कुछ एप्लीकेशन 32 बिट में करती हैं। 32 बिट में कर रही हो 64 में तो कर जाएंगी, लेकिन जो 64 बिट में है वो उसके लिए 32 बिट इज़ नॉट सफिशेंट। तो ये भी एक पॉइंट है। तो वहाँ 32 बिट और 64 बिट कंप्यूटर सिस्टम का मतलब वहाँ रजिस्टर कैपेबिलिटी से भी है, वहाँ पर रजिस्टर कैपेबिलिटी से ही है। तो ये आपके 1 बिट होगी, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से 8 होगा, 16 होंगे। ठीक है? कुछ इस तरीके से होगा 8 16 32। ये हमेशा 2 पावर एन में होते हैं। यहाँ तो डायग्राम में तो नहीं दे रखा उस तरीके से, लेकिन याद रखिएगा 2 पावर एन में होते हैं। 2 पावर एन में क्यों होते हैं? क्योंकि दो ही पॉसिबिलिटीज़ है, इधर 0 और 1। तो 2 पावर 0 क्या होगा? 2 पावर 0 तो 1 होगा। तो 1 बिट का तो नहीं होता कोई भी, लेकिन हाँ 2 पावर 1 2, 2 पावर 2 4, 2 पावर 3 8, 2 पावर 4 16, 2 पावर 5 32। इस तरीके से रजिस्टर का साइज़ होता है। 34 32 30 64 128 512। ठीक है? तो मेमोरी इसी तरीके से होती है आपकी साइज। तो अभी मैं थोड़ा सा समराइज़ कर देता हूँ यहाँ पर। इसमें ये है आपका कि CPU बेसिकली कंटेन 3 डिफरेंट पार्ट्स: कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट एंड रजिस्टर्स. So register is basically a type of memory. It is the smallest memory. It resides inside the computer system. It is the fastest memory, and it store data temporarily inside the CPU whenever required. Okay, it also store intermediate calculation or final result or the value of different variables, we can say that. तो ये रजिस्टर का काम है, दैट इज़ द वर्क ऑफ रजिस्टर। जहाँ तक कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट की बात है, तो उसके बारे में हम पिछली बार भी डिस्कस कर चुके थे ब्लॉक डायग्राम को। अभी आपको वहाँ समझ में आ गया था, तो आपको सेम यहाँ कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है? क्योंकि हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। डिटेल में जब हम डिस्कस करते हैं तो कुछ पॉइंट्स तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, वो आएंगे इसके अंदर, जैसे कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट का वर्क। और कुछ हमें एक्स्ट्रा भी देखने को मिलेगा, जैसे इस केस में हमने रजिस्टर्स के बारे में पढ़ने को मिला। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। क्लियर? सो अब बात करते हैं कंट्रोल यूनिट की। तो कंट्रोल यूनिट बेसिकली कंट्रोल एंटायर ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. इट मॉनिटर द कंप्यूटर सिस्टम फंक्शनलिटी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. और जहाँ तक अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट की बात है, तो
इसका याद करना बड़ा आसान है। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन को समझिए पहले। यू अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिटी को तो आप समझ ही जाएंगे। अर्थमेटिक ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ऑल दीज आर कॉल्ड द अर्थमेटिक ऑपरेशन। और लॉजिकल ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं? लेस देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ऑल दीज आर कॉल्ड द लॉजिकल ऑपरेशंस। तो जो अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने का काम करते हैं, इसको अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट बोलते हैं। क्लियर? चलिए, तो ये कंप्यूटर सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम हो गया। 2 to 3 टाइम्स आप ड्रॉ करके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। और अगर जो मैंने समझाया है उसको आपने समझा है प्रॉपर वे में, तो आई थिंक ये इतना टफ नहीं है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। तो अब ऐसा ना हो कि आप पूछा जाए आपसे सीपीयू का और आप कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ कर दें, फिर कहेंगे कि सर इसमें भी तो सीपीयू है। नहीं, सीपीयू का ब्लॉक डायग्राम का मतलब है आपको सीपीयू की फंक्शनैलिटी को समझाना है। ठीक है, सीपीयू को मेन फोकस में रखना है आपको। ठीक है, अदर पार्ट्स के बारे में नहीं है। तो इसी तरीके से इस ब्लॉक डायग्राम आप देखेंगे। अभी कहेंगे इसमें सर इसमें भी मेमोरी इनपुट आउटपुट, ठीक है, इसमें इनपुट आउटपुट है, लेकिन इसमें मेन फोकस किस पर है आपका? सीपीयू पर। तो ये सीपीयू का ब्लॉक डायग्राम, इसको हम कह सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए सीपीयू किस तरह से इंटरकनेक्टेड है, उसके लिए एक डायग्राम है, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन है। तो ब्लॉक की फॉर्म में दे रखा है इसलिए ब्लॉक डायग्राम है। और ब्लॉक की फॉर्म में डिफरेंट कंपोनेंट्स दे रखे होते हैं, एरो के थ्रू उनका कनेक्शन दे रखा होता है। तो यही ब्लॉक डायग्राम की डेफिनेशन है। तो अक्सर स्टूडेंट्स इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं कि सब ब्लॉक डायग्राम से क्या मतलब है। ब्लॉक डायग्राम से मतलब सिर्फ इतना है कि जो पार्ट्स हैं आप उनको बॉक्सेस की फॉर्म में लिखें और आपस में इंटरकनेक्ट कर दें उसको। क्लियर? आगे देखते हैं। सो रजिस्टर के बारे में पहले कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। रजिस्टर को अलग से पूछा जा सकता है एग्जाम में, और 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है लास्ट ईयर। ठीक है, और एक क्वेश्चन हमेशा आया है लास्ट 3 ईयर से, आप देखेंगे 9th के एग्ज़ाम में रजिस्टर से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन रहता है। डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा कभी भी, याद रखिएगा। और रजिस्टर इज़ अ टेम्परेरी स्टोरेज एरिया, डेफिनेशन पूछी जा सकती है लेकिन चांस कम है। कुछ एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन इस पर हमेशा बना रहता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, इट इज़ द स्मॉलेस्ट एंड द फास्टेस्ट मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम एंड इट रिसाइड्स इनटू द सीपीयू। सो और इज़ अ पार्ट ऑफ सीपीयू। तो देखते हैं, इसमें देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स दे रखे हैं। रजिस्टर इज़ अ टेम्परेरी स्टोरेज एरिया बिल्ट इनटू ए सीपीयू। अच्छा, ये पॉइंट डिस्कस करना हम भूल गए। ये परमानेंट स्टोरेज नहीं है, टेम्परेरी स्टोरेज है, डेटा चेंज होता रहता है। और जैसा लिखा गया है, जो मैंने बताया था, बिल्ट इनटू ए सीपीयू, सीपीयू का पार्ट है, और कोई मेमोरी सीपीयू का पार्ट नहीं है, रजिस्टर है। रजिस्टर इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी यूज्ड to quickly accept, store and transfer data and instructions that are being used immediately by the CPU। जो भी कुछ इंस्ट्रक्शन CPU के थ्रू यूज़ की जाती हैं, उन सभी इंस्ट्रक्शंस को, उन सभी डेटा को प्रोवाइड कराने का काम आपका रजिस्टर का होता है। एंड द रजिस्टर्स यूज्ड बाय द CPU आर ऑफन टर्म्स एज प्रोसेसर रजिस्टर। इसीलिए इसको प्रोसेसर रजिस्टर भी बोला जाता है। प्रोसेसर का मतलब CPU रजिस्टर से भी बोला जाता है। तो ये मेमोरी तो है, लेकिन ये मेमोरी डायरेक्ट यूज़ की जाती है सीपीयू के थ्रू। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है, प्रोसेसर रजिस्टर में होल्ड एन इंस्ट्रक्शन, स्टोरेज एड्रेस और एनी डेटा। अब ये होल्ड क्या करेगी? ये देखिए, एक डेटा को होल्ड कर सकती है, और कभी कभी ये डेटा के एड्रेस को भी होल्ड करती है। एड्रेस का मतलब है मेमोरी लोकेशन क्या है उसकी, मेमोरी में कहाँ स्टोर्ड है। तो इंस्टीड ऑफ डेटा इट स्टोर द एड्रेस ऑफ द डेटा, ये डेटा का एड्रेस स्टोर करती है। ठीक है, मेमोरी हमारी सेल्स में डिवाइडेड है, और हर सेल का एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है। उस एड्रेस को स्टोर आपका रजिस्टर कर सकता है, आपका करता भी है, और ये इंस्ट्रक्शन को भी स्टोर कर सकता है। तो एक डेटा को स्टोर कर सकता है, डेटा का एड्रेस के मेमोरी में वो कहाँ स्टोर्ड है उसे कर सकता है, और इंस्ट्रक्शन को भी स्टोर कर सकता है। तो ये काम था रजिस्टर का। आई थिंक ये पॉइंट्स आपको समझ में आ चुके होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, रजिस्टर वेरी इन बोथ नंबर्स एंड साइज डिपेंडिंग ऑन द सीपीयू आर्किटेक्चर। ये पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। रजिस्टर्स नंबर और साइज दोनों में वेरी करते हैं, और ये डिपेंड करता है सीपीयू का आर्किटेक्चर क्या है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फिक्स नंबर ऑफ रजिस्टर्स होते हैं। सीपीयू का आर्किटेक्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने रजिस्टर्स होंगे और उनका साइज़ कितना होगा। जहाँ तक प्रोसेसर की बात है, सम प्रोसेसर हैव 8 रजिस्टर वाइल अदर्स हैव 16 और 32 और मोर। कुछ प्रोसेसर के पास 8 रजिस्टर्स होते हैं, जबकि कुछ के पास 16 या 32 होते हैं।
For many years register were 32 bit, but now many are 64 bit in size. अब तो ज़्यादा जो सिस्टम आते हैं 64 बिट्स रजिस्टर्स के ही आते हैं, लेकिन 32 बिट रजिस्टर्स बहुत कॉमन था किसी टाइम पर साइज़। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं कि रजिस्टर्स नंबर्स और साइज़ दोनों वेरी करते हैं और सीपीयू के आर्किटेक्चर पर डिपेंड करते हैं, और इनका साइज़ होता है 2 पावर n में, मैंने पहले ही बताया था, ठीक है। 8, 16, 32 इस तरीके से होता है। मैं कॉमन साइज़ तो 64 बिट है नाउअडेज जो यूज़ हो रहा है आपका। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट को हम समझा चुके हैं ऑलरेडी, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जब हम देखेंगे तो ये कुछ डेटा है जिसमें कंप्यूटर के टाइप्स हैं, इसको रीड करेंगे, थोड़ा सा और कुछ डिफरेंस है उनको समझेंगे, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्लास के लिए डेटा है, मैं आपको इसको सेंड कर देता हूँ आपको डेटा को। तो आप फ़िलहाल इसके नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। याद रखिएगा नोट्स बनाते समय कि नोट्स बनाते समय आपको स्लाइड 1 और स्लाइड 2 को नहीं लिखना है, क्योंकि आप ये प्रीवियस वीडियोज़ में ऑलरेडी इनको डिस्कस किया जा चुका है। यहाँ से फिर रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझाया गया था, ठीक है। व्हाट इज़ कंप्यूटर नहीं लिखना है, ऑलरेडी लिख चुके हो। ब्लॉक डायग्राम नहीं लिखना है, ऑलरेडी लिख चुके हो। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर सिस्टम से लिखना आपको स्टार्ट करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।